Yes. Yes, sir. I will announce when I will take your quiz. Whiteboard is visible? Yes, sir. So in the previous lecture, we introduced the concept of range and kernel. What is kernel? Kernel of T, or it is also called null space of T, denoted by NT. What is this kernel? If T is a map from U to V, T is a linear transformation. Linear map. What is null space? All elements from the domain such that its image is how much? 0. Zero. 0. Identity. This is your null space or kernel of T. And range space, range of T is, it is collection of all V belongs to V such that Tu is equal to V. है ना। तो रेंज ट्री जो है ये सबसेट होता है V का, और नल स्पेस सबसेट होता है U का. So we have done some problems where how to find range space, how to find null space. अगर सपोज करिए जीरो मैप है आपका, सपोज जीरो मैप. व्हाट इज जीरो मैप? जीरो मैप क्या होगा आपके? If you have 0 U to V, so zero map will be what? The 0 of U will always 0. For all U belongs to, है ना? जीरो मैप की इमेज हमेशा क्या होती है? Only 0. 0. So if you have U, here you have V, so all the elements, they will map to where? 0. So what is the kernel of this zero map? बताइए. यहाँ पे अगर मैं U. क्या है? पूरा U है ना? Yes. Whole U. Yes. So null space of this zero map, अगर इसे मैप से करूँ मैं, this is whole U. क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज 0 होगी, है ना? And what is range? 0. 0. V. So this map is onto or not? Onto है क्या? No, sir. Not an onto map, है ना? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 इमेज है, बाकी देयर आर सो मेनी. onto पे क्या होता है? When codomain is equal to range. Similarly, suppose I have identity map. Identity map क्या होता है? From same vector space to same vector space, such that I of U is equal to how much? Element की वही इमेज आएगी. U. So if you have here U, this is also U. So every element has same image. If it is U, it is also U. U1, U1, and so on. So what about here? What is kernel of identity map? 0 U. 0 U, है ना? क्योंकि सिर्फ 0 ही एलिमेंट होगा जो इसकी 0 इमेज. 0 पे मैप जाएगा. What about range? U सर पूरा. Whole U, है ना? क्योंकि यहाँ पे पूरा U आ रहा है, हर एलिमेंट की वही इमेज है. This is onto. Yes, sir. Yes. onto map है ना. तो जीरो मैप इज नॉट onto map, दिस onto. तो जो यहाँ पर जीरो मैप था उसका रिवर्स हो गया इन द आइडेंटिटी. ठीक. So in this way you can find kernel or range space of different elements. Then we have very important theorem, page number 6. Let T from U to V
be a linear map, then there are some statements and they are very important results, in fact, you can use. First thing is that range space RT is a subspace of किसका? V sir. B का, है ना, क्योंकि B का सबसेट तो है ही, मोर ओवर इट इज अ सब स्पेस आल्सो, यानी कि रेंज स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होगा हमेशा, अगर V वेक्टर स्पेस है तो, है ना. Yes. B null space NT, this is a subspace of U sir. U. ये डोमेन सेट का सबस्पेस होगा व्हेन डोमेन सेट इज अ वेक्टर स्पेस, so it is a subspace of C. T is 1 1 1 1 का होता है, ये मैप इज 1 1 ना, की डेफिनेशन होती है. मैप इज 1 1 if and only if null space NT is the zero subspace. Okay, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपको मैप शो करना है, if you want to show that some map is 1 1, you can show this condition, it's a characterization actually, so you can show that the null space is the zero subspace. मतलब क्या हुआ इसका, that means कि null space में सिर्फ क्या एलिमेंट है, only Zero वाले elements. जीरो है, तो अगर मैं नल स्पेस लूंगा तो उसमें सिर्फ जीरो ही आएगा. यहाँ पे अगर आप देखें आइडेंटिटी मैप में क्या था, सिर्फ जीरो था. ये मैप 1 1 होता है आइडेंटिटी मैप, देखो इट इज Yes, 1 1 मैप, है ना. 1 1 मींस एवरी एलिमेंट मैप टू अ सिंगल यूनिक एलिमेंट. unique. ये तो यहाँ पर यही हो रहा है, देखो. तो इसे हम नल स्पेस से भी चेक कर सकते हैं. ये डेफिनेशन, ये थ्योरम कहती है. डी पार्ट, if u1 u2, suppose you have un vectors in domain, this is the symbol of spanning set. If the spanning of this vectors span set is equal to u, suppose domain u के equal है, then range set RT will be equal to span of their images. Okay, अगर some vectors are there whose spanning set equal to the domain u, ये है ना, ये कॉमा है u, then range space will be spanned by the images of this vector, है ना. रेंज स्पेस की बात कर रहे हैं, पूरा कोडोमेन नहीं कर रहे, सिर्फ रेंज स्पेस. ओके, Yes sir. एंड E, if u is finite dimensional, अगर u की आपको डायमेंशन मालूम है, फाइनाइट है, u का मतलब ध्यान रखना हमेशा डोमेन, है ना, देन डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस RT will be less than equal to डायमेंशन ऑफ u. ठीक, रेंज स्पेस की डायमेंशन u की डायमेंशन से हमेशा लेस होगी, इक्वल भी हो सकती है और अलग केस है, लेकिन लेस होगी, लेस देन इक्वल. रेंज स्पेस की, v की नहीं बात कर रहे. चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. बताइए, अगर किसी सेट को सब स्पेस शो करना है तो क्या करते हैं हम उसको, हाउ टू शो सब स्पेस का Alpha मतलब u1 plus beta Yes, sir. यस, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 शो कर दो, या 1 by 1 अलग अलग कर दो, है ना. तो अगर मैं मान लो ये शो कर दूं कि u v1 प्लस v2 belongs to RT and alpha v1 belongs to RT, so it is done. Okay, what I will take, आपने जो बताया वो सिंगल कंडीशन है, या आप अलग अलग कर सकते हैं अगर चाहे. तो हमने लिया v1 v2 belongs to RT, so what I will prove, v1 plus v2 belongs to RT and alpha v1 belongs to RT. तो if v1 v2 belongs to RT, तो इसका मतलब क्या हुआ,
देयर Suspense. रेंज की है ना, हाँ रेंज की डेफिनेशन क्या थी, रेंज की डेफिनेशन आपकी ये है, करेक्शन ऑफ ऑल v such that tu is equal to v, है ना। तो अगर ये v1 v2 रेंज में है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट u1 u2 belongs to u such that बोलिए, है ना, Yes, sir. क्योंकि रेंज स्पेस में है, इसका मतलब ये रेंज का मतलब ये हुआ कि ये आपका अगर कोर डोमेन है तो यहाँ रेंज स्पेस होती है, और ये डोमेन है u, ये u है, ये v है, ये rt है। तो rt में अगर दो वेक्टर्स आपके कोई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव इमेज लाइक दिस, है ना। नाउ व्हाट अबाउट Yes, देयर sir. सम, अब इसका सम की बात करें। नाउ v1 प्लस v2 विल बी हाउ मच, tu1 प्लस tu2, Yeah. and t is a linear map, so मैं given a t is a linear, so what I can write, Yeah. T of u1 plus u2. ये लिख सकता हूँ, Yes. है ना, क्यों, सिंस Properties. T is linear, यहाँ पे रीजन भी लिखना, मैथमेटिक्स से when you are writing something you have to write the logic reason also। अच्छा, but u1 प्लस u2 ये कहाँ होगा, ये तो u में होगा, क्यों, Yes, sir. सिंस u is a Subspace. वेक्टर स्पेस, है ना, u सब Vector स्पेस space. है, u वेक्टर स्पेस है, इनफैक्ट u इज अ वेक्टर स्पेस। तो अगर वेक्टर स्पेस है तो कोई दो वेक्टर अगर u में होते हैं तो उसका सब भी u में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि you have v1 plus v2 is equal to t of u1 plus u2, so it means what, कि there exists some element u1 plus u2 such that its image is v1 plus v2। तो क्या इससे मैं क्या कह सकता हूँ, can I say इसका v1 plus v2 belongs to rt, yes, है ना, sir. क्योंकि v1 plus v2 is the image of u1 plus u2। एक एलिमेंट ऐसा है u1 plus u2 क्या हो जाएगा, तो ड्यू एलिमेंट u3, तो देयर इज सम एलिमेंट हुज इमेज इज v1 plus v2। इसका मतलब क्या हुआ कि v1 plus v2 बिलोंगिंग टू रेंज सेट, ठीक है, तो सम बिलोंग हो गया Yes. इसमें। सिमिलरली अल्फा ले ले, है ना, ये तो अभी आपने एक चीज शो करी है। सिमिलरली अब अगर मैं अल्फा v1 ले लूं, अल्फा v1 को आई कैन राइट अल्फा टाइम्स ऑफ t of u1, u1. अब इट इज लीनियर तो आई कैन राइट t ऑफ अल्फा u1, है ना, और ये अल्फा u1 कहाँ जाएगा, u के अंदर, बट अल्फा u1 belongs to, reason is same, u is a vector space, okay, so it means what, implies that Alpha v1 belongs to T. b, sorry, range of t, so by this and this you got that rt is a subspace of v, है ना, rt is a vector space of v and hence आप लिखेंगे rt is a subspace of v। बी पार्ट में नल स्पेस की बात करते हैं, बी पार्ट में भी सेम, I want to show nt is a subspace, so I will have to show कि sum of two vectors belongs to nt and scalar multiplication belongs to nt। तो let u1 u2 belongs to nt null space, इसका मतलब क्या होगा, what does it mean, अगर कोई वेक्टर nt में है तो what is the definition of null space, फिर null space की definition क्या है, Maps to 0. all the elements, all u belongs to u, u1 u लिखने से u belongs to u such that, है ना, इट मींस अगर ये दो एलिमेंट नल स्पेस में है
तो TU1 भी 0V होगा और TU2 आल्सो 0। ओके, अब इसका Yes, sir. सम ले नाउ। U1 प्लस U2, अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है U1 हाँ, तो ये U1 प्लस U2 बिलोंग्स टू नल स्पेस। तो अगर U1 प्लस U2 नल स्पेस में होगा तो क्या होना चाहिए, इसकी इमेज कितनी होनी चाहिए, 0, 0 है। तो ये लेके Yes, चलते हैं, तो बिकॉज T इज लीनियर तो आई कैन राइट, T of U1 plus T of U2. और ये कितना है 0 plus 0. हाउ मच, 0, sir. so this implies 0. that belongs to null Belongs space, to है ना। एंड ऑल्सो T ऑफ alpha. अल्फा U1 ले लीजिए, it is alpha TU1, it is alpha 0V, अब alpha into 0 it is again 0V, so this implies that, Alpha U1 belongs to so alpha. by this and this implies that NT is a vector space and hence NT is a subspace of U। बताइए क्लियर है यहाँ तक तो, Yes, sir. सिंपल पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि 1 के लिए यू हैव टू शो ओनली दैट null space is the zero subspace। तो पहले if and only if का मतलब one side true and other side also true। तो फर्स्टली आई विल टेक C, वन साइड ले लेते हैं, लेट T be 1 1। क्या शो करना है हमें, क्या शो करना है, null space is a 0, zero space, 1. है ना। अब अगर 1 1 है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, अगर टू एलिमेंट्स आप ले लें सपोज TU इज इक्वल टू TV, तो क्या इंप्लाइज करेगा, U is equal to V। है ना, ये डेफिनेशन होता है। It is a definition of 1 1। If you want to show 1 1, what we show, TU is equal to TV implies U is equal to V। तो T11 आपने assume किया तो इसका मतलब ये हुआ कि whenever TU is equal to TV implies U is equal to V। ओके, अब हमने माना सपोज लेट एनी आर्बिट्रेरी U belongs to NT, ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो नल स्पेस में है। अगर हमें शो करना है कि नल स्पेस इज द ओनली स्पेस विच है सिर्फ 0 वेक्टर, यहाँ सिर्फ 0 है, तो ये U क्या आना चाहिए, 0. 0 आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि U क्या है, U इज एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। तो अगर U 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल स्पेस में सिर्फ 0 ही वेक्टर है और वी आर डन। ओके, तो लेट U बिलोंग्स टू NT। अब अगर U NT में बिलोंग होगा तो डेफिनेशन क्या कहती है नल स्पेस की, TU शुड बी 0. 0 V, है ना। और 0 V को Yes. क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि T इज अ लीनियर मैप। तो मैंने आपको बताया था लीनियर मैप में क्या होता है, हमेशा 0 मैप्स टू 0। तो अगर ये 0 Yes, भी sir. है तो 0 तो जरूर इमेज होगी होगी इसकी, है ना। Yes, sir. अब T तो 1 1 है, तो क्या हो जाएगा ये, U should must be 0, sir. U इज इक्वल टू 0. 0U, क्यों, क्योंकि T इज 1 1। तो जब TU इज इक्वल टू TV प्लस U इज इक्वल टू V, तो U आपने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया NT में, ये हमेशा क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल स्पेस जो है इट इज अ 0 सब स्पेस, NT इज अ, इसे हम क्या कहेंगे 0 सब स्पेस, है ना, या इसे यही तो लिखना था, NT इज अ 0 सब स्पेस। और यू कैन से कि नल स्पेस में सिर्फ 0 ही ऐसा वेक्टर होगा जो 0 पे मैप करेगा। वन साइड प्रूफ किया अभी हमने, अब कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि इफ NT इज इक्वल टू 0U देन TU 1 1, क्योंकि वो इफ एंड ओनली। सो कन्वर्सली
लेट, अब क्या कंसीडर करना है, एंटी इज अ जीरो सबसे जीरो, यानी कि इसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है। तो अगर हमें T11 प्रूफ करना है, टू प्रूफ T is 11, क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, we have to prove T of U1 is equal to T of U2 implies that, है ना, ये शो करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। लेट TU1 is equal to TU2, है ना। अगर इसे सॉल्व करके ये चीज आ जाती है तो वी आर डन, है ना, ये डेफिनेशन है। तो लेट TU1 is equal to TU2, यस सर ये लिया। देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं ये लूं, ठीक है, TU1 माइनस TU2 ये लेके चले, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी, T of U1 since T is linear। अब ये क्या, ये तो आपस में इक्वल है, तो जब आप इक्वल एलिमेंट का डिफरेंस देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जीरो आइडेंटिटी किसका, बी का, क्योंकि ये एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, बी में इमेजेस हैं ये, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, तो कोई एलिमेंट ऐसा जिसकी इमेज जीरो आ जाए, इट मीन्स व्हाट, वो एलिमेंट कहाँ जाएंगे, बताइए, हैं, null space, यस। तो आपने दो एलिमेंट लिए U1 माइनस U2, ये मतलब एक एलिमेंट ऐसा लिया विच इज डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स, so the image of this element is zero, it means this difference will go to null space। लेकिन null space में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यस सर तो इसका मतलब क्या हुआ कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू जीरो, यस और यू कैन से, है ना, इसे उधर ले आओ उठा के, जीरो प्लस U2। सो इट मीन्स व्हाट, ये लेके चले हम, दिस इंप्लाइज दिस, सो इट मीन्स T is क्लियर है, ये इसका गुड। अब है डी पार्ट, कि if U1 U2 UN span of this is U, then the if span of range, span of image is range। So D part, let one side है ना, देखो जब हमें, मैंने आपको बताया था whenever you want to show A is equal to B, what is the procedure, A is a subset of B, है ना, it is the procedure। तो हमें क्या शो करना है, here we want to show that RT is equal to this, तो हमें क्या शो करना होगा, this is a subset of this is a subset of this, है ना, RT is a subset of spanning set is a subset of range set। चलो अब अगर ये U1 U2 UN they are spanning the domain set, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, this implies that any vector can be written as a linear combination, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, any vector belonging to you U belongs to U can be written as linear combination of can be written as a linear combination, short में लिखते रहो, can be written as a linear combination of U1 U2 UN, है ना, ये आएगा। अच्छा अब ये वेक्टर जो है TU1 TU2 ये कहाँ आएंगे, नाउ द वेक्टर्स TU1 TU2 एंड सो ऑन TUN, ये वेक्टर्स हैं, होंगे कहाँ, ये सारे इमेजेस हैं, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, सब RT में, है ना, ये सब RT में होंगे।
तो अगर ये सारे वेक्टर्स आर टी के अंदर है, ठीक है, तो यू नो और आर टी हमने अभी शो किया है, क्या है, आर टी इज अ सब स्पेस, शो किया था है Yes, ना। sir. सब स्पेस का मतलब क्या था कि अगर कोई दो वेक्टर आर टी में है तो उसका सब भी आर टी में जाएगा, है ना। तो अगर ये कुछ वेक्टर्स आर टी में है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, RT में sir. वो भी आर टी में जाएगा, है ना। तो अगर इसका लीनियर एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इंप्लाइज दैट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TUN दिस आल्सो बिलोंग्स टू RT, है ना। क्योंकि आप क्या लिख सकते हैं इसको भाई, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि अल्फा ऑफ TU1 एंड सो ऑन प्लस Yes, sir. बीटा ऑफ TU2, है ना। ये तो लिखते हो ये। अब ज्यादा है तो इसको हम ज्यादा को लिख सकते हैं ब्रेक करके, एक करके, अल्फा में सारे ले लो, बीटा में, है ना। तो अल्फा बीटा आपके क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनका कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ वो भी RT में जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट आई कैन से, कि जो इसका स्पैनिंग सेट है एंड सो ऑन TUN, ये क्या होगा, सबसेट हो, क्योंकि जब स्पैनिंग सेट लिखूंगा ये तो अभी एलिमेंट्स है, जब स्पैन बनाऊंगा तो सेट बन गया, तो किसका सबसेट होगा ये, RT का, है ना। RT. तो अभी हमने शो किया A सबसेट ऑफ B। अगर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन RT में, इसका मतलब कि अगर मैं स्पैनिंग सेट बनाऊं तो वो हमेशा RT का सबसेट रहेगा, क्योंकि सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ जाएंगे, बिकॉज RT इज अ सब स्पेस। वन साइड इज प्रूफ। अब शो करेंगे RT इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट B बिलोंग्स टू RT एंड वी विल शो V बिलोंग्स टू दिस साइड आल्सो, है ना। तभी सबसेट होता है। सबसेट के लिए क्या शो करते हैं, X belongs to A implies that, so I want to show now RT is a subset of this, तो let V belongs to RT। तो अगर V belongs to RT है तो इसका मतलब क्या हुआ, there exists some U belongs to U such that TU is T equal of to, U equal to V. है ना। अब ये U जो है देखिए, अब U क्या है, U is spanning by this, since U belongs to U, और U क्या है, U is spanned by U1 U2 UN, है ना, ये हमें गिवन है, U से स्पैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि U को आई कैन राइट, एनी U कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन सम अल्फा 1 U1, Beta. So on. ओके। सो दिस इंप्लाइज Yes, दैट, sir. हाँ, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये U क्या है, इस U को क्या मैं लिख सकता हूँ, अच्छा इसे अगर हम V ले तो V क्या है, V कितना था TU, ध्यान रखो हमें क्या शो करना है, V बिलोंग्स टू दिस स्पैनिंग सेट, तो V इज इक्वल टू TU है, तो TU का मतलब क्या हुआ, Alpha 1 U1. ये है ना। सो V इज इक्वल टू TU T ऑफ दिस, ओके। Okay. अब क्योंकि T तो लीनियर मैप है तो क्या लिख सकता हूं मैं, ब्रेक करेंगे सर. Alpha T. ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनी V तो आपका कोई भी आर्बिट्रेरी था, एनी V कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TU1 TU2 TUN। तो इसका मतलब V कहाँ जाएगा, स्पैन ऑफ, है ना। Yes, sir. दिस इंप्लाइज दैट V U1 बिलोंग्स T1 टू स्पैन ऑफ, TU1. So on up to TUN. बताइए, है ना। भाई आपके पास कोई V आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, लेकिन वो ऐसा था कि उसकी इमेज थी, दैट वाज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट। अब U की कंडीशन हमें गिवन थी कि एनी U कैन बी रिटन एज दिस, तो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, TU इज दिस व्हिच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बिकॉज़ T इज लीनियर, और T लीनियर था इसलिए आई कैन राइट इन दिस वे। और इसका मतलब क्या हुआ कि एनी V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इट मींस V बिलोंग्स टू स्पैन सेट ऑफ दिस,
ठीक है। सो Yeah. इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, V belongs to this, RT implies that V belongs to span, so this means RT is a subset of Span. so from 1 and 2, ये 1 था आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि if U is spanned by some vectors, then the range space will be spanned by their images. ठीक है, लास्ट पार्ट और है इसमें भी, या इतने, हाँ एक पार्ट और है, ई पार्ट. ई पार्ट इज व्हाट, इफ U is finite dimensional, कहाँ गया, यस, इफ U is finite dimensional, क्योंकि जो कंपैरिजन की बात होती है फाइनाइट नंबर्स में होती है, तो अगर U की डायमेंशन सपोज करिए फाइनाइट है, तो जो रेंज स्पेस है उसकी डायमेंशन हमेशा लेस होगी डायमेंशन ऑफ U से. ठीक है, तो U की फाइनाइट डायमेंशन है, तो हमने मान लिया लेट डायमेंशन ऑफ U बी n, कुछ फाइनाइट है ना, तो हमने मान लिया डायमेंशन ऑफ U क्या है, n है. तो अगर डायमेंशन n है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे. मींस क्या होगा कि अगर आप n एलिमेंट्स ले लें तो वो क्या करेंगे, इस पूरे U को स्पैन कर देंगे, है ना. अब अगर इसने स्पैन किया तो बाय पार्ट D, अब जब डी में क्या शो किया है, अगर मैं इनकी इमेजेस लूंगा, ये किसे स्पैन करेंगी बताइए, आर टी को, है ना, बाय डी पार्ट, जब ये हमने शो किया होगा. अब ये बताइए कि आर टी को ये स्पैन कर रही है ना. तो हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी कि जो अगर आर टी की डायमेंशन जो भी होगी, है ना, आर टी की डायमेंशन आपके पास जो भी होगी, वो हमेशा क्या होगा, स्पैनिंग वेक्टर जो होंगे दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, बताइए भाई, एक थ्योरम थी बाय थ्योरम 3.6.2, क्या थी थ्योरम 3.6.2, नंबर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स. याद है ये नंबर ऑफ एल, इसको हमने यूज करा था, बहुत चीजें प्रूव करी कि नंबर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर्स, अगर आपके एन वेक्टर स्पैन कर रहे हैं और एम वेक्टर्स एलआई हैं, तो स्पैनिंग वेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स. ठीक है, ये एक थ्योरम है आपके पास जो हमने शुरू में बिल्कुल प्रूफ करी थी, इसका इस्तेमाल किया था. तो ये आर टी जो है वो इससे स्पैन हो रहा है. ओके, तो आर टी की डायमेंशन क्या हो सकती है, या तो एन हो सकती है, क्योंकि अगर ये सारे एलआई हो गए तो डायमेंशन क्या हो जाएगी एन, या अगर ये एलआई नहीं हुए तो इससे ज्यादा वेक्टर एलआई हो सकते हैं क्या, एलआई वेक्टर है नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि मैं ये क्या थ्योरम कहती है कि जो स्पैनिंग वेक्टर है वो हमेशा एलआई वेक्टर से क्या होंगे, ज्यादा होंगे. स्पैनिंग वेक्टर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स. तो अगर डायमेंशन ऑफ आरटी की आप बात करेंगे तो आरटी की डायमेंशन का मतलब बेसिस एलिमेंट्स, तो बेसिस में क्या होता है कि स्पैन भी करे और एलआई भी हो, तो एलआई वेक्टर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एन से कम ही होंगे, है ना. तो नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स इन आरटी ये क्या होंगे हमेशा, लेस देन इक्वल टू एन होंगे, है ना. अब अगर ये अगर ये एन हो गए तो डायमेंशन एन हो जाएगी, और कम हुए तो कम हो जाएगी. तो अगर मैं इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ आर टी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एन, और एन क्या है, डायमेंशन ऑफ
ठीक है, तो इस थ्योरम से नंबर ऑफ एलाइ वेक्टर्स क्योंकि लेस होंगे, तो अगर नंबर एलाइ वेक्टर्स n हो गए तो यही डायमेंशन हो जाएगी, तो n हो जाएगा, वरना इससे लेस होंगे तो n - 1 n - 2 वॉटेवर। तो डायमेंशन ऑफ RT इज ऑलवेज लेस देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। अच्छा, जो डायमेंशन होती है इसका भी एक नाम होता है, एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि अगर T इज अ लीनियर मैप, then if RT is finite dimensional, if RT range space is finite dimensional vector space, then dimension of RT, it is called the rank of T, is called the rank of T, इसे हम रैंक बोलते हैं और डिनोट करेंगे स्मॉल RT से, ठीक है। कैपिटल RT से तो आपने रेंज स्पेस था, ये सेट था, ये नंबर होगा। सिमिलरली if NT null space is finite dimensional vector space, then dimension of NT is called the nullity, it is called the nullity of T, ठीक है, rank of T, nullity of T, and denoted by small nt। तो जो स्मॉल RT है ये नंबर है, क्या होगा, ये रैंक होगी। स्मॉल nt क्या है, ये भी नंबर है, ये डायमेंशन होगी। ओके, यस तो यहाँ पर अगर आप देखें जीरो मैप की, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो जीरो मैप की नलिटी कितनी है, u के बराबर है। तो जो u की डायमेंशन होगी, अब u अगर आपके पास v2 होता तो v2 हो जाती है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन u के, और रैंक, इसकी रैंक कितनी है, रैंक कितनी है इसकी, रेंज कितनी आई, 0 आई, तो रैंक क्या है इसकी, स्मॉल है ना, नहीं 0 आया ना ये, तो रैंक कितनी हो गई, 1 हो गई, बताइए, 0 हो गई ना, सर हम उसकी क्योंकि 0 आया, गिन 0 के का आए मतलब नंबर नो ऑफ एलआई, सिंगल वेक्टर है वो एलआई भी नहीं है, 0 तो एलआई नहीं होता है, तो क्या है इसकी रैंक, देयर इज नो एलआई वेक्टर, तो डायमेंशन क्या है इसकी, 0, है ना, समझ में आई बात। यस तो here, हाँ, तो रैंक एंड nullity are the dimension of null space and dimension of range